Welcome, my dear students of class 10th. Today's we will continue our study with this chapter, this poem, A Tiger in the Zoo. First of all, we have to think what is the essence of this chapter. This chapter will create a perception in a two contradictory situation. One situation where is a tiger, that is a very wild animal, but residing in a cage, in a zoo, एक पिंजड़े में बंद है. तो what happens if you have been confined by the situation? You have a lot of knowledge, you have a lot of power, but there is no space to implement it. That is the main situation of a tiger that is behind the cage. And the second situation, a tiger that is residing in a open jungle. He has a lot of opportunities, he has a freedom and opportunities to move, to do anything, to move anywhere. That that situation reflects his the full potential, and the same thing you can apply in the human being's life. If you are confined, if your freedom has been taken by other, and you have been confined in a particular circumferences, in a particular situations, just like a tiger residing behind the cage, you cannot use your potential fully. But if you get freedom, if you have a full chance to implement the situation, chance to use your potential, uh, you can make your luminous future. This is the main essence of this story, this poem. So first of all, we should try to recite this poem in a proper tone. He stacks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet, quiet in his quiet rage. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near a water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. That is the rhyme, age and village. But he's locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. That is the main tone to recite this poem. And who is the writer of this poem? Leslie Norris. Leslie Norris has written this poem. तो इसके पीछे रीज़न क्या है इस पोएम को पढ़ने का, वो मैंने आपको बता दिया कि एक टाइगर वही है, सिचुएशन ये है कि वो बेचारा बंद है जंगल में, तो उसकी सिचुएशन क्या है, वो किन किन स्थितियों में रह रहा है, एंड द अनदर सिचुएशन दैट इज मूविंग इन एन ओपन जंगल विथ हिज फुल फ्रीडम, देयर इज नो बाउंडेशन. तो इन दोनों को हम लोग समझते हैं. अब देखिए मैं इसको अब थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ. ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्टेप्स, अ फ्यू स्टेप्स इन हिज केज, on pads of velvet quiet in his quiet rage. अब देखिए, in his quiet rage का मतलब थोड़ा क्रोध में भरा हुआ, गुस्से में भरा हुआ वो जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, देखना. स्टाक्स, स्टाक्स का मतलब होता है टू मूव विथ एटीट्यूड. ये ध्यान रखना, थोड़ा अकड़ के चलना, गुर्रा के चलना. तो शेर तो सदैव ऐसे ही चलता है. तो वो अपने क्वाइट रेज यानी थोड़े से गुस्से के साथ अकड़ करके चल रहा है. द फ्यू स्टेप्स इन हिज केज, यानी जिस पिंजड़े में बंद है उस पिंजड़े में जितनी जगह उसको मिल रही है सिच्चे सलाखों के पीछे, उसी में वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. द फ्यू स्टेप इन हिज केज. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जान लें कि इन हिज विविड स्ट्रिप्स, यानी विविड का मतलब स्पष्ट, स्ट्रिप्स मतलब दिखने वाली धारियां. जो शेर जो होता है ना, टाइगर, उसकी जो धारियां होती बॉडी में, तो उन स्ट्रिप्स वाला यानी वो जो टाइगर है वो अपने बंद केज में कुछ स्टेप तक
अकड़ के चलता है, और ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी जो उसका पैड मतलब जो पाँव का पंजा होता है गद्देदार होता है, तो उसी के लिए उस वेलवेट पैड यानी गद्देदार उस अपने पंजे से धीरे से वो उस पिंजड़े में टहल रहा है। तो स्टैक्स मतलब टहल रहा है, विविड मतलब स्पष्ट, स्ट्रिप्स मतलब उसकी धारियां, क्वाइट रेज मतलब थोड़ा सा क्रोध से भरा हुआ। हाँ, वो गुर्राता रहता है, मैंने देखा है डायरेक्टली जू में, ऐसे ही वो रहता है। तो ये जो पहला स्टेंजा है ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? टाइगर रिसाइडिंग इन अ केज, मतलब जो जू वाला टाइगर है उसके बारे में ये बता रहा है। अब देखिए अगला पैरा देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो, ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग का मतलब टू हाइड, टू हाइड यानी अपने आप को छिपाता है शेर, कब? जब उसको शिकार करना होता है, शिकार का इंतजार जब वो करता है। इन अ शैडो। अब देखिए स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस नियर द वाटर होल, यानी जहाँ पर पानी होता है ना, वहाँ वाटर होल का मतलब पानी उपलब्ध हो जहाँ पर, वाटर प्रोक्योरमेंट, वो गड्ढा हो सकता है, पोखरा हो सकता है, तालाब हो सकता है, नदी हो सकती है, किसी छोटे से झरने से निकलने वाला पानी हो सकता है। तो वो सिचुएशन जहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, तो उस जगह पर वो क्या करता है? छुपता है लंबी लंबी घासों के पीछे, और वहां पर धीरे धीरे सरकता है, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस नियर द वाटर होल वेयर। अब उस जो ये वाटर होल शब्द आया है उसके पास क्या होता है? प्लम्प डियर पासेस, जब मोटे मांसल, यानी प्लम्प का मतलब थोड़ा थुलथुले, जिसे मोटे ताजे, मतलब जिनके मांस अधिक हों, वो वाले जो हिरन गुजरते हैं, तो उनके शिकार के लिए ये सिचुएशन क्रिएट करता है कौन? टाइगर। और ये कौन वाला टाइगर है? दैट रिसाइडिंग इन जंगल, नॉट इन अ केज। अब फिर देखिए, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउस, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउस, he should be snarling around house at the jungle's edge, at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। तो पहले चीज जान ली कि टेरराइजिंग द विलेज क्या कर रहा है कि लोगों को डराते हुए, आतंकित करते हुए, लोगों को डराते हुए, आतंकित करते हुए, यानी वो जो हमारा शेर है, टाइगर है, वो क्या कर रहा है? स्नरलिंग का मतलब दहाड़ लगा रहा है, गुर्रा रहा है। कहाँ पर? अराउंड द हाउसेस, यानी चारों तरफ जो घर हैं, यानी बस्ती के समीप, घरों के समीप वो दहाड़ लगाता है और लोगों को, विलेजर्स गांव वालों को डराता है। लेकिन वो अब देखना, जो हाउ अराउंड द हाउस एट द जंगल्स एज, यानी जंगल के किनारे बसे हुए जो हाउसेस हैं, जो विलेज हैं, वहां के लोगों को वो दहाड़ के डराता है। अब देखना, बारिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, तो और गुर्राने के साथ साथ डराने का और तरीका क्या है? बारिंग मतलब दिखाना, पंजों को दिखाना। तो वाइट फैंग्स एंड हिज क्लास मतलब पंजे, और फैंग्स मतलब जो नुकीले दांत होते हैं ना, उनको ऐसे मुंह फाड़ करके। तो वाइट फैंग्स यानी जो सफेद नुकीले दांत, और उसके जो पंजे हैं उनको बारिंग मतलब दिखाता हुआ, एग्जिबिट करता हुआ, प्रदर्शित करता हुआ और दहाड़ता हुआ, जंगल जो के किनारे बसे हुए जो गांव हैं, उन घरों और गांवों के लोगों को टेरराइज करता है। तो ये कौन कर रहा होगा? टाइगर दैट रिसाइडिंग इन जू और जंगल, नो जू, नो नो नो, जंगल दैट रिसाइडिंग इन द जंगल। जू वाले की बात नहीं है, ये इसका जलवा है, ये जलवा दिखा रहा है। अब जरा इसका जलवा अगले देखिए। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट सेल का मतलब क्या? सिच्चा हो, ये जैसे यहाँ पर है ना सिच्चा बना हुआ, मैंने यहाँ पर बनाया सलाख, और कंक्रीट मतलब पक्की बनी हुई, जिसमें लोहे की सलाखें बनी होती हैं, पिंजड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं। अब ये मिट्ठू तोता वाला पिंजड़ा तो शेर को दिया नहीं जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही उसका पिंजड़ा होगा। तो उस कंक्रीट सेल में वह लाख है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। तो और जो उसकी स्ट्रेंथ है उस कंक्रीट सेल के अंदर, यानी जो उसकी पावर है वो क्या है? उसी
कंक्रीट सेल के ही अंदर है तो वो कैसी है, लॉक्ड है, वो भी लॉक्ड है। अब वहां पर वो क्या करता है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। स्टॉकिंग मतलब थोड़ा अकड़ के टहलना। तो वो कहाँ तक टहल रहा है भैया, जो उसकी लेंथ है एज केज की, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो बस इतना ही कर रहा है बेचारा। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर, यानी आने जाने वाले लोगों को नज़रअंदाज कर देता है। क्योंकि जब आप जू में जाएंगे और इसको देखने के लिए यहाँ पर खड़े होंगे तो ये क्या करेगा, आप आप आए, हजारों लोग आ रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है बेचारा, अपना अकड़ के टहल रहा है अपने छोटे से गुस्से के साथ, लेकिन आपको तो इग्नोर कर रहा है ना। अगर यही बाहर होता और आप होते तो क्या करता, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं आपके साथ क्या करता ये। लेकिन यहाँ पर आपको इग्नोर करता है, आओ जाओ यार तुम्हारा काम है, चलो छोड़ो जाओ, ये चीज़। तो स्टैकिंग मतलब टहल रहा है, द लेंथ ऑफ हिज केज, यानी उस केज की जितनी लंबाई है उसी में बेचारा टहलता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, जो आने वाले लोग हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए। फिर क्या कह रहा है, तो ये वाला कौन है, दैट रिसाइडिंग इन अ केज इन अ जू। यहाँ पर क्या है, ही हियर्स ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, यानी वो रात की अंतिम आवाज को सुनता है। और वो अंतिम आवाज किसकी होगी, द पेट्रोलिंग कार्स, वो जो टहलने वाली पुलिस की पेट्रोलिंग कार होती है, कार्स होती हैं। यहाँ पर पेट्रोलिंग का मतलब केवल पुलिस वाली कार से मतलब नहीं है, यहाँ पेट्रोलिंग का मतलब पेट्रोल डालने वाला नहीं है, बल्कि ट्रैवलिंग करने वाला, जो वो फेरा लगाते रहते हैं ना ये पुलिस वाले, उनकी कार जो चलती है तो उस, और ये कह सकते हैं कि आने जाने वाली जो कारें हैं, ये भी कह सकते हैं आप, दोनों सेंसेस के हो सकते हैं। पुलिस की गश्त लगाने वाली कार कह सकते हैं, लोगों की आने जाने वाली कार कह सकते हैं यहाँ पर। बट पेट्रोलिंग का अर्थ ये नहीं है कि टंकी में पेट्रोल वाली कार, ये मतलब नहीं है। तो इन कार्स की जो लास्ट वॉइस है नाइट में वो सुनता है। एंड स्टेयर्स, और देखता है, यहाँ स्टेयर्स का मतलब घूरना, तो एकटक निहारता रहता है, किनको, ब्रिलियंट स्टार्स को। लेकिन किस चीज से, विथ हिज ब्रिलियंट आई, अपनी उन चमकीली आंखों से चमकते तारों को रात में वो निहारता है। तो ये कौन होगा, ये जंगल वाला होगा, दैट रिसाइडिंग इन जंगल विथ हिज फुल फ्रीडम, विदाउट एनी बार, विदाउट एनी बाउंडेज। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कौन सा पैरा किस सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करता है। एक बार इसको अच्छे से आप पढ़ लें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसकी इंपॉर्टेंट मीनिंग्स को तो मैंने इसी दौरान बता दिया, आप वीडियो देखेंगे तो अपनी कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा। और रही बात इसकी एक्सरसाइज की, तो मैं इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में आपके सामने रख दूंगा। थैंक यू वेरी मच।